Hello everyone. Online classes, class 6, subject science, chapter 5, substance, padarth, pure substances. In our everyday life we call various substances pure, like pure honey, pure water and pure wool. Pure means not mixed with anything else. In scientific sense, a pure substance is a substance which is made up of only one kind of particles, elements and compounds are pure substance. हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम विभिन्न पदार्थ को शुद्ध कहते हैं, जैसे शुद्ध शहद, शुद्ध पानी, शुद्ध ऊन। शुद्ध का अर्थ यह है किसी और चीज़ के साथ मिश्रित ना होना। वैज्ञानिक अर्थ में एक शुद्ध पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो केवल एक प्रकार के कणों से बना होता है। तत्व और यौगिक शुद्ध हैं। पदार्थ मैटर is made up of tiny particles called atoms, which are invisible to naked eye. Atom combine to form molecules. A molecules can be made of the same atoms and also of different atoms. When two atoms of the same type combine, they form a molecules of a elements. For example, oxygen is an element. One molecule of oxygen is made up of two atoms of oxygen. Elements are pure substances or cannot be broken down by any chemical means. When two atoms of different kinds combine in a mixed ratio, they form a molecules of a compound. For example, water is a compound because its molecules contain two different atoms, hydrogen and oxygen. Water being a compound can be broken down into its constants hydrogen and oxygen by a chemical process. पदार्थ छोटे कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहा जाता है, जो नग्न आँखों के लिए अदृश्य होते हैं। परमाणु अणु बनाने के लिए गठबंधन एक अणु एक ही परमाणु से बना हो सकता है और विभिन्न परमाणु से भी। जब एक ही प्रकार के दो परमाणु गठबंधन करते हैं तो वह एक तत्व के अणु बनाते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन एक तत्व है। ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के दो परमाणु से बना होता है। तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं और किसी भी रासायनिक साधनों से टूट नहीं सकते। जब विभिन्न प्रकार के दो परमाणु एक निश्चित अनुपात से संयोजित होते हैं तो वह एक यौगिक का एक अणु बनाते हैं। उदाहरण के लिए पानी एक यौगिक है क्योंकि इसमें अणु में दो अलग अलग परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। एक यौगिक होने के नाते पानी को किसी को इसके नीचे तोड़ दिया जा सकता है। घटक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होती है, केमिकल प्रोसेस होती है। इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। एन impure substance is a mixtures of two or more substance. A mixture is formed by mixing substance together. The substance in a mixture can be present in any amount. A mixture can usually be separated into its original components by mechanical or physical means. Mixtures are either homogeneous or heterogeneous in nature. मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ दो या अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। मिश्रण में से एक मिश्रण बनता है और एक साथ पदार्थ। मिश्रण में पदार्थ किसी भी मात्रा में मौजूद हो सकते हैं। एक मिश्रण का आमतौर पर यांत्रिक या भौतिक साधनों द्वारा उसके मूल घटक में अलग किया जा सकता है। मिश्रण या तो सजाती या प्रकृति में विषम होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर्स आर those that are well mixed, for their constants are distributed uniformly so they appear the sum thought out solution. Are homogeneous mixtures in a sugar solution, you will not be able to see sugar and water density. तरल रूप से यह वितरित किया जाता है, इसलिए वह पूरे एक तरफ नहीं दिखाया जाता। समाधान सजाती मिश्रण है। चीनी घोल के में आप चीनी और पानी को अलग तरह से नहीं देख पाएंगे। हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स आर दोज
that do not have a uniform composition thought out, so they do not appear to be the sum thought out. A mixture of sand and water is heterogeneous mixture. विषम मिश्रण वे होते हैं जिनमें एक समान रचना नहीं होती, वो तो पूरे में एक जैसे नहीं दिखते। रेत और पानी का मिश्रण विषम होता है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स एग्जांपल solid husk and rice, solid and liquid sugar and milk, liquid and liquid water and milk, liquid and gas oxygen water, gas and gas air around us that has gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen, etc. Purpose of separating the constituents of a mixture. Most substances that occur in nature may contain, प्राकृतिक में होने वाले अधिकांश पदार्थों में हो सकता है। वन और मोर यूजफुल सब्सटेंस, एक या अधिक उपयोगी पदार्थ। वन यूजफुल सब्सटेंस एंड वन और मोर हार्मफुल और अनवांटेड। Thus most naturally occurring substances are mixtures of two or more substances. To make the available substance fit for use, their impurities must be separated from the useful substance. एक उपयोगी पदार्थ और एक या अधिक हानिकारक या अवांछनीय, इस प्रकार अधिकांश प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण होते हैं। उपलब्ध पदार्थ को उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए इन अशुद्धियों को अलग किया जाना चाहिए और उपयोगी पदार्थ यूज किया जाना चाहिए। फैक्ट स्ट्रिप, द अनवांटेड और हार्मफुल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर जनरली कॉल्ड इम्प्योरिटीज। मिश्रण के अवांछित या हानिकारक घटकों को आमतौर पर अशुद्धियों कहा जाता है। To remove any harmful or undesirable constituents, small pieces of stone and undesirable seeds, grains are removed from rice and dals before cooking. The useless pieces or stones and seeds, grain are thrown away. हानिकारक या अवांछनीय घटक को हटाने के लिए, जैसे पत्थर और अवांछनीय बीज, अनाज के छोटे टुकड़े, चावल और दाल पकाने से पहले उसे हटा दिए जाते हैं। पत्थर और बीज के अनाज के बेकार टुकड़े फेंक दिए जाते हैं किसी पदार्थ का शुद्ध नमूना प्राप्त करने के लिए। टू ऑब्टेन a pure sample of a substance, impurities present in any substance are removed. To obtain a pure sample of the substance, pure substances are needed in medicine, research and industry and also in our daily life. किसी पदार्थ को मौजूद अशुद्धियों को पदार्थ का शुद्ध नमूना प्राप्त करने के लिए हटा दिया जाता है। शुद्ध पदार्थ की आवश्यकता दवाओं, शोध और उद्योग में और हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग होती है। टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंस, उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए। ए मिक्सचर्स मैनी कंटेन वन और मोर यूजफुल कॉन्स्टेंट्स, दे शुड बी सेपरेटेड फॉर देयर प्रॉपर यूज। के लिए मिक्सचर में एक से अधिक उपयोगी घटक हो सकते हैं, उन्हें उसे हटाने के लिए अलग अलग किया जाना चाहिए और बराबर इसका यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम बाय ए मेथड कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिमिलर मिल्क और गुड इन टू सेपरेट वाटर। उदाहरण के लिए पेट्रोल या केरोसिन आदि कच्चे तेल से पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, इसे भिन्नात्मक आसवन कहा जाता है। इसी तरह मक्खन को अलग करने के लिए दूध या दही का इस्तेमाल भी किया जाता है। मेथड्स फॉर सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर्स।
Separation of the useful substance from unwanted substance is very common in our day-to-day life, and even in laboratory industries we use simple device to carry out this separation on daily basis. हमारे दैनिक जीवन में और यहाँ तक कि प्रयोगशाला में, इंडस्ट्री में अवांछित पदार्थों से उपयोगी पदार्थ को अलग करना बहुत आम है। हम दैनिक आधार पर वह विभाजनों को पूरा करने के लिए सरल उपकरणों का यूज करते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल लेबोरेटरी मेथड टू। द चॉइस ऑफ मेथड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। मिश्रण के घटक को सरल प्रयोगशाला विधि द्वारा भी अलग किया जा सकता है। विधि के चुनाव गुणों के अंतर के आधार पर किया जाता है। टू चॉइस ए सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन, फर्स्ट फाइंड आउट द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टेंट्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर। पृथक्करण के लिए एक उपयुक्त विधि का चयन करने के लिए पहले घर की संपत्ति का पता लगाएं जो दूसरे से अलग है और निश्चित है। सम मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर सेपरेटिंग द कॉन्स्टेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर डिस्क्राइब्ड बिलो। मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियाँ। सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, द मेथड डिस्क्राइब्ड बिलो are used for separating the desired solid component from a mixture of solid। नीचे वर्णित विधियों का उपयोग वांछित ठोस घटक को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। ठोस पदार्थ का मिश्रण। हैंड पिकिंग, हाथ से उठाना। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द यूजफुल वंस। दिस मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन। यह उपयोगी सामग्रियों से अवांछित सामग्रियों को अलग करने के लिए सरल विधि होती है। इस विधि का उपयोग केवल तब तक किया जाता है टू अनवांटेड मटेरियल इज प्रेजेंट इन सिमिलर क्वांटिटी। अवांछित सामग्री को कम मात्रा में मौजूद है होना है। साइज, शेप और कलर्स ऑफ द अनवांटेड मटेरियल्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूजफुल वन। मोस्ट फूड ग्रेन्स सच एज wheat, rice, pulses, etc. contain very small pieces of stones and sometimes insect. Also some these pieces of stones and insect present in any food grain are removed by hand picking। अवांछित सामग्री को आकार या रंग या उपयोगी में अलग होना। अधिकांश खाद्य जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल आदि पत्थरों से बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कभी कभी कीड़े भी होते हैं। किसी भी खाद्य अनाज को मौजूद पत्थरों और कीड़ों को इन छोटे टुकड़ों को हाथ से उठाकर हटा दिया जाता है। Sieving, this method is used for separating solid constituents of a mixture which differ in their size. In this method, a sieve having holes of proper size is used. The bigger particles are retained by the sieve, whereas the smaller ones passed through it। Sieving is used for the flowing purposes। Sieving इस विधि का उपयोग के ठोस घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है जो उनके आकार में भिन्न होते हैं। इस विधि को एक छलनी का उचित आकार का उपयोग किया जाता है। बड़े कणों को बनाए रखा जाता है जबकि छोटे कणों को इससे अलग किया जाता है। Sieving is used for the flowing purposes। निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए साइंडिंग का उपयोग किया जाता है। फॉर सेपरेटिंग क्रॉप फ्रॉम वेट फ्लोर, फॉर सेपरेटिंग फाइन सैंड फ्रॉम ग्रेवल एक्सेट्रा, फॉर सेपरेटिंग कैशूज नट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, फॉर सेपरेटिंग पेयर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। गेहूँ के आटे से कप को अलग करने के लिए, बजरी आदि से महीन रेत को अलग करने के लिए, अलग अलग आकार के काजू अलग करने के लिए, अलग अलग दालों को अलग अलग साइज में करने के लिए। विनोविंग, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट ग्रेन्स आर हैवियर देन हस्क
and hay. Farmers use the method for separating wheat grain from husk and hay. They drop the mixtures of wheat and husk and hay from a height. The lighter husk hay are carried by the wind and from a herb at a small distance away. The wheat grains being heavier fall almost vertically to form a separated हैप नियर बी। सो यह विधि उस संपत्ति पर आधारित है जो अनाज भारी होता है, किसान इसे भूसी और घास से अलग करते हैं। इस विधि का उपयोग गेहूं के दानों को भूसी से अलग करने के लिए करते हैं और वह गेहूं और भूसी और घास की ऊंचाई के मिश्रण को अलग करके और अलग अलग गिराते हैं। हल्का भूसी और घास हवा द्वारा ले जाए जाते हैं और थोड़ी दूर तक गिरते हैं पर ढेर बनाते हैं। पास में एक अलग ढेर बनाने के लिए गेहूं के दाने भरे होते हैं। जैसे भूसी और घास जाकर दूर गिरती हैं और दाने इकट्ठा एक जगह गिरते हैं। थ्रेसिंग। The process of separating grains from sun-dried stalk is called threshing. In the process, the stalks are beaten against any hard surface such as a large rock or a stone slab, etc. To free the grains, threshing is also done with the help of animals. Large quantities of stalks can be subjected to a machine called thresher to obtain grains more easily. धूप में सुखाने वाला डंठल को अनाज से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में डंठल को किसी भी कठोर सतह जैसे कि एक बड़ी चट्टान या पत्थर या पटिया आदि से के दाने से मुक्त कराने के लिए पीटा जाता है और जानवरों की मदद से भी इसको थ्रेसिंग की जाती है। अधिक आसानी से अनाज प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में डंठल को थ्रेसर नामक मशीन के अधीन किया जाता है। थैंक यू।